Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in this lecture we will learn about the structure, function and the location of spleen in fish, and we will also discuss about the vertebrates that lack spleen, and in the last we will discuss about the size of spleen and its variation among different groups of fishes. The spleen is found in nearly all vertebrates. अब तकरीबन तमाम जो रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदार हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो रखते हैं, उनके अंदर तकरीबन स्प्लीन जो है तमाम के अंदर पाई जाती है. एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज अ नॉन वाइटल ऑर्गन. नॉन वाइटल ऑर्गन इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज विदाउट विच वी कैन सर्वाइव. अगर ये नहीं भी होगा तो जानदार इसके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज अ नॉन वाइटल ऑर्गन. अब और भी बेशुमार नॉन वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे अपेंडिक्स है, यूट्रस है, टेस्टिकल्स हैं, ओवरीज एंड आइज एट्सेट्रा. तो इनके बगैर भी रहा जा सकता है. जैसे अब लंग्स हैं तो एक लंग के साथ रहा जा सकता है, किडनी के साथ रहा जा सकता है. तो दैट्स वाई दे आर द नॉन वाइटल ऑर्गन्स. अब वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट है वो वाइटल ऑर्गन में आ जाता है. एंड इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अ लार्ज लिम्फ नोड. अब ये जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं तो बिल्कुल ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिम्फ नोड की तरह नज़र आ रहा होता है. लेकिन इसमें भी स्ट्रक्चरल वेरिएशन हम देखेंगे कि कुछ स्पीशीज़ में इसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है. कुछ में लार्ज होता है, कुछ में स्मॉल साइज़ का होता है. तो स्प्लीन को तिली कहा जाता है उर्दू में. तो स्प्लीन ये फ़िश का आपको यहाँ पे दिखाया गया. इसके पास ही ये लिवर है, थाइमस है, इंटेस्टाइन है, उसकी म्यूकस स्किन की है, किडनी है और गिल्स वगैरह फ़िश के आप देख सकते हैं. It is found in the serosal lining of the intestine. In anatomy, serous membrane or serosa is a smooth tissue membrane consisting of two layers of mesothelium which secrete serous fluid. The inner layer that covers organs in body cavities is called the visceral membrane, and a second layer of epithelial cells of the serous membrane called the parietal layer lines the body wall. Between the two layers is a potential space, mostly empty except for a few millimeters of lubricating serous fluid that is secreted by the two serous membranes. Now if we talk about the functions of spleen, when present the spleen contains lymphocytes and macrophages, and it is involved in immune reactivity as well as being the most important hemopoietic organ in fish. यानी ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करने वाला भी ऑर्गन है और ये इम्यून रिस्पॉन्सेज भी शो करता है, बिकॉज इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस. इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स पाई जाती हैं. अब मैक्रोफेजिस क्या होते हैं? वो मोनोसाइट्स ही होते हैं बेसिकली, जो कि किसी भी इन्फेक्शन वाली साइट पे जाके मैक्रोफेजिस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. So monocytes are large circulating cells that develop into macrophages at the site of an infection. And macrophages are the fixed cells that develop from monocytes that migrate to the spleen, liver and kidney, where they form interlacing networks of lymphoidal tissue. Macrophages are also found in the walls of the atrium, the intestinal walls and mesenteries. Besides having a role in the removal of pathogens and cellular debris by phagocytosis, macrophages also help regulate the activity of T cells. Now if we talk about the lymphocytes of a fish, with the exception of anathans or jawless fishes, all the extant or modern fishes like higher vertebrates possess three basic types of lymphocytes. These are natural killer cells, B cells, which are responsible for humoral immune responses through the production of immunoglobulins or antibodies to fight extracellular infections like bacteria, fungi, etc. And T cells that are responsible for cell-mediated immune responses and include both effector and regulatory cells. Cytotoxic T cells, CD8 positive, also known as CD8 positive cells, attack and destroy host cells which have become infected by viruses or other intracellular pathogens. Distinct from the action of natural killer cells, cytotoxic T lymphocytes require specific antigen presentation to recognize target cells. Helper T cells activate both B cells and cytotoxic T cells for the attack,
while suppressor T cells await the signal to change, slow or end the assault. Sharks possess lymphocytes homologous to mammalian B and T cells, although B cells may not be identical with the mammalian B cell. B cells in bony fishes, for example, have been shown to possess phagocytic capabilities that are absent in cells of higher vertebrates. The occurrence of lymphocytes in lampreys has quite recently been explained by the discovery of their unique among vertebrates as well as all animal system of rearranging antigen receptors. Now in this slide we will discuss about the position of spleen in a fish. तो आप यहाँ पे स्प्लीन की पोजीशन देख सकते हैं फिश के अंदर, जो कि सीरोजल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे ये पाया जाता है फिश के अंदर. तो सीरोजल लाइनिंग क्या होती है, जैसे आपको पहले बताया था कि सीरोजा इज़ अ स्मूथ टिश्यू मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ 2 layers ऑफ mesothelium which secrete serous fluid. The inner layer that covers organs in body cavities is called as the visceral membrane, and a second layer of epithelial cells of the serous membrane called the parietal layer lines the body wall. And between these two layers is a potential space which is mostly empty except for a few millimeters of lubricating serous fluid that is secreted by the two serous membranes. तो यहाँ पे जो स्प्लीन इसका फिश का पाया जाता है, तो इस तरफ अगर आप देखें तो ये टेल है फिश की, इस तरफ उसका हेड है. यानी फिश की बॉडी के अगर हम डिवीजन की बात करें तो उसमें पहले उसका हेड आता है, फिर ट्रंक आता है, फिर टेल आ जाती है. इसमें नेक वगैरह नहीं होती है. तो ये हेड इस तरफ है, इस तरफ टेल है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बॉडी कैविटी के अंदर ये स्प्लीन आपको विजिबल है. सो स्प्लीन जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेज में जैसे शार्क्स हैं, स्केट्स हैं या रेज हैं, उनके अंदर या बोनी फिशेज के अंदर जो हैं इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ रेड पल्प. तो ये रेड पल्प से मिलके बना होता है, एंड इट इज़ नॉर्मली अ समवट इलोंगेटेड ऑर्गन एज इट एक्चुअली लाइज इनसाइड द सीरोजल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. सो वी कैन से दैट द स्प्लीन लाइज बिटवीन द इंटेस्टाइनल बल्ब एंड द लिवर. तो ये इंटेस्टाइन है, ये लिवर है, तो इसके दरमियान में पीछे जो है यहाँ पे स्प्लीन पाई जाती है फिश के अंदर. तो जैसे आपको पहले बताया था कि फिश के अंदर जो हिमेटोपोइसिस का या ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का जो अमल होता है, इट अकर्स विद इन बोथ द स्प्लीन एंड द किडनी. द स्प्लीन लाइज बिटवीन द इंटेस्टाइनल बल्ब एंड द लिवर. ऑन ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जाम द स्प्लीन अपीयर्स टू बी कंप्लीटली प्रीडोमिनेंटली ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स. दैट्स वाई रेड पल्प जैसे आपको पहले बताया था, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं विद फ्यूअर नंबर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स. और लिम्फोसाइट्स कम होंगे, आरबीसीज इसमें ज़्यादा होते हैं. वाइट एंड रेड पल्प आर नॉट वेल डिमार्केटेड इन मोस्ट हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस ऑफ फिश स्प्लेनिक टिश्यू. Most of the spleen is composed of red pulp formed by sinusoids containing nucleated red blood cells. The white pulp is composed of lymphocytes aggregating around vessels. In this slide we will discuss about the vertebrates which lack spleen. और उसमें हम 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर स्प्लीन नहीं पाया जाता है या तिली नहीं पाई जाती. वो हैग फिशेज हैं और लैम्प्रेज हैं. तो फर्स्ट वन आर हैग फिशेज जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दूसरी हैं यहाँ पे लैम्प्रेज. हैग फिशेज बिलोंग टू द क्लास मिक्सिनी एंड दे आर ईल शेप्ड स्लाइम प्रोड्यूसिंग मरीन फिशेज, and they are the only known living animals that have a skull but no vertebral column. तो इनके अंदर क्या होता है कि डिफ्यूजिव जो है वो लेयर पाई जाती है हिमेटोपोइटिक टिश्यू की, यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करने वाले टिश्यूज़ की. यहाँ पे इनके अंदर कुछ डिफ्यूज लेयर होगी, यानी कोई प्रॉपर उसकी स्पेस नहीं होगी या प्रॉपर एरिया नहीं होगा, डिफाइंड ऑर्गन इनके अंदर होगा विद इन द गट वॉल विच हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू रेड पल्प. तो रेड पल्प हमने देखा था कि स्प्लीन के अंदर पाया जाता है, तो उसके जैसे ही इसकी स्ट्रक्चर होगी. एंड इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी होमोलोगस विद द स्प्लीन ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स. तो ये हायर वर्टिब्रेट्स के स्प्लीन की तरह ही इन दोनों के अंदर जो है होमोलोगस जो है वो डिफ्यूज्ड टिश्यू पाया जाता है, जो कि सेम वैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. होमोलोगस मीन्स दैट दे हैव द सेम रिलेशन और रिलेटिव पोजीशन और स्ट्रक्चर. So we can say in biology that the organ having similar in position, structure or evolutionary origin, but it is not necessarily in function.
यानी ऐसा ऑर्गन जो फंक्शन में तो ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह में और ओरिजिन में सेम हो, उसको होमोलोगस ऑर्गन का हम नाम देते हैं। तो ये होमोलोगस है स्प्लीन ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स के साथ, यानी हैग फिशेस का भी और लैम्प्रेज के भी, जो वहाँ पे डिफ्यूजिव टिश्यू हैं। अब इसमें आप जो दूसरी जो है वो प्रिमिटिव फिशेस को देख सकते हैं। दीज आर द लैम्प्रेज, एंड लैम्प्रेज आर एन एंशियंट एक्सटेंट लीनिएज ऑफ जॉलेस फिश ऑफ द ऑर्डर पैट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स, and the adult lamprey may be characterized by a toothed funnel like sucking mouth। अब यहाँ पे toothed आप इनका माउथ देख सकते हैं जो funnel like है, एंड इसके अंदर जो है और बेशुमार यानी कि जो है इसके माउथ के अंदर जो है वो हैग फिशेस के ये छोटे छोटे टूथेड आपको एजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये गोल इनका माउथ होता है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज साइक्लोस्टोम्स। तो ये साइक्लोस्टोम्स के अंदर आ जाते हैं। Now before discussing the size of spleen, we will discuss some other major functions of spleen as well. The spleen may be a primary site for the identification and removal of cells which are weakened by age or infection. Such cells are targets for phagocytosis and deposition in the spleen. Enlargement of the spleen, which is known as splenomegalia, is an indicator of possible systemic bacterial or viral infection. The spleen has multiple functions in teleost fish. In addition to hematopoiesis or the formation of blood cells, the spleen may have immunological functions similar to lymph nodes in mammals. तो ये इम्यून रिस्पॉन्सेज भी शो करता है, जैसे लिम्फ नोड्स मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो सेम इसी तरह से टेलियोस्ट या मॉडर्न बोनी फिशेस के अंदर जो है स्प्लीन जो है इम्यूनिटी को भी एग्जिबिट कर रहा होता है। The outer capsule of the spleen is composed of connective tissue forming a thin outer wall and scattered invaginating connective tissue projections. So the pulp matrix is held together by a diffuse network of argyrophilic fibers. The spleen also retains a substantial number of mature red blood cells that can be released into circulation during periods of stress or extended physical activity. तो इसके अंदर जो है ब्लड सेल्स भी स्टोर हुए होते हैं, तो इनको ये रिलीज़ कर देता है आरबीसीज को जब कोई भी स्ट्रेस की एक्टिविटी हो या कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एनिमल परफॉर्म कर रहा है, यानी स्विमिंग कर रही फिश, तो उस वक्त क्या होगा, स्प्लीन बहुत सारे आरबीसीज को भी जो है वो छोड़ देगा ब्लड के अंदर। तो स्प्लीन की अगर हम बात करें तो स्प्लीन के अंदर वेरिएशन पाई जाती है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेस के अंदर। साइज जो स्प्लीन का है वो वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द स्प्लीन ऑफ इलेस्मोब्रैंक्स के अंदर अब शार्क्स आ जाती हैं, स्केट्स और रेज आ जाती हैं। दे हैव वेरी लार्ज स्प्लीन्स। अब ये नीचे आप अगर इस इमेज में देखें तो यहाँ पे आपको ये स्प्लीन दिखाया गया है इलेस्मोब्रैंक्स का, जो कि इलोंगेटेड ऑर्गन है, काफ़ी लार्ज इनके स्प्लीन होते हैं इलेस्मोब्रैंक्स। बट द स्प्लीन ऑफ टिलियोस्ट इज़ ऑफ वेरिंग साइज। जो टिलियोस्ट फिशेस हैं इनका स्प्लीन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम फिश टू फिश, यानी वो एक से ये नहीं कि हम कह सकते कि इलोंगेटेड है या राउंडर है, उसकी शेप वेरी करती है। वाइल इन केस ऑफ साइक्लोस्टोम्स और प्रिमिटिव फिशेस, यानी जो गोल मुंह रखने वाली मछलियाँ जिनको हमने पहले भी देखा है लैम्प्रेज वगैरह को, दे डू नॉट हैव स्प्लीन। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि दे डोंट कंटेन स्प्लीन। तो इस तरफ ये आपको बोनी फिश दिखाई गई हैं, यानी टिलियोस्ट फिश का स्प्लीन आप ये देख सकते हैं, जबकि इस तरफ यहाँ पे आप जो है वो इलेस्मोब्रैंक का स्प्लीन देख सकते हैं। तो दोनों में वाज़िया फ़र्क है। इलेस्मोब्रैंक का स्प्लीन जो है वो इलोंगेटेड है, काफ़ी लार्ज है साइज़ में, जबकि जो टिलियोस्ट या मॉडर्न बोनी फिशेस हैं उनका स्प्लीन का इतना बड़ा साइज़ नहीं है। In conclusion of previous slide, we can say that in elasmobranchs, the spleen is an elongate strip of tissue which is attached to the mesenteries between the stomach and duodenum, and it is supplied with arterial blood which drains into the portal vein. But in case of teleost or modern bony fishes, the size, shape and extent of development of spleen varies. Generally, it is more compact than that which is present in the sharks, and it consists of masses of red and white pulp, respectively the sites of red blood cells and white blood cells production, and it is surrounded by numerous small capillaries. So spleen contains the lymphocytes and the macrophages, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर lymphocytes और macrophages पाए जाते हैं। अब जॉलेस फिश के अलावा, यानी कि जो मतलब एनेथन्स हैं जिनमें साइक्लोस्टोम्स आ जाती हैं, यानी हैग फिशेस या लैम्प्रेज,
So all the extant or modern fishes have three basic type of lymphocytes. These are the natural killer cells, B cells and cytotoxic T cells, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है. So we can say that the immune system has two basic components that respond to foreign antigens. These are the humoral response and the cell-mediated response. The humoral response involving production of immunoglobulins or antigens by plasma cells, and the cell-mediated response is mediated by T lymphocytes. In addition, there are also cell populations which are responsible for non-specific and specific immune defenses, and they include lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and thrombocytes. The lymphocytes are classified as immunoglobulin positive B cells and immunoglobulin negative T cells, while the other cell types include mast cells, non-specific cytotoxic cells and dendritic cells. In addition, the tissue of the spleen and the kidney of fish also contain a distinct populations of cells known as melanomacrophages. So when present, the spleen contains lymphocytes and macrophages, and it is involved in immune reactivity as well as being the most important hematopoietic organ in the fish. Hagfishes lack a defined organ. Myxine and Iptotretus possess islands of hematopoietic tissues around the portal veins. अब यहाँ पे आप मिक्जीन, ग्लूटिनोजा और इप्टोट्रीटस सिरहैटस स्पीशीज़ देख सकते हैं, जिनके अंदर स्प्लीन तो ख़ास तौर पर नहीं कोई पाया जाता स्पेसिफिक, लेकिन इनके अंदर हिमेटोपोइटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि पोर्टल वेन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं. स्प्लीन लाइक टिश्यूज़ अकर इन इंटेस्टाइनल स्पायरल वॉल्स ऑफ लैम्प्रेस. अब जो लैम्प्रेस फिशीज़ हैं उनके जो इंटेस्टाइनल हैं स्पायरल वॉल्स, वहाँ पे कुछ स्प्लीन लाइक टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो वैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि हैग फिशीज़ एंड लैम्प्रेस लैक अ डिफाइंड ऑर्गन और दे लैक स्प्लीन्स. Now in this slide we will compare the spleen of elasmobranchs and teleost fishes. जैसा कि आपको पहले बताया था कि elasmobranchs में शार्क्स, स्केट्स और रेज आ जाती हैं, जबकि टेलियोस्ट में जितनी भी मॉडर्न बोनी फिशेस हैं वो आ जाती हैं. The spleen of elasmobranch is an elongate strip of tissues which is attached to mesenteries between the stomach and duodenum. अब जो स्टमक है और ड्यूडिनम है उसके दरमियान में जो है ये इनके अंदर जो है स्प्लीन पाया जाता है, तो मिजेंट्रीज के साथ ये अटैच हुआ होता है. तो मिजेंट्री क्या है? इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैचेस द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन and other organs to the posterior wall of the abdomen. So अब जो इसका स्प्लीन होता है elasmobranchs का, it is supplied with arterial blood which drains into the portal veins. But in case of teleost fishes, the size, shape and extent of development of spleen varies. यानी अब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेस के अंदर जो स्प्लीन का साइज, शेप या डेवलपमेंट वेरी कर रही होती है मॉडर्न बोनी फिशेस के अंदर. जनरली इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट देन इन शार्क्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैसेज ऑफ रेड एंड वाइट पल्प सराउंडेड बाय न्यूमरस स्मॉल कैपिलरीज. तो जैसे आपको पहले बताया था कि रेड पल्प जो है वो आरबीसीज को पैदा करता है हेमेटोपोइसिस में, वाइट पल्प जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, इनकी प्रोडक्शन कर रहा होता है. एंड दे आर सराउंडेड बाय न्यूमरस स्मॉल कैपिलरीज. Now here is a summary of spleen. Spleen is a hematopoietic organ. In fishes, hematopoiesis occurs within both the spleen and the kidneys. And the spleen lies between the intestinal bulb and the liver. On a gross or microscopic exam, the spleen appears to be completely predominantly of nucleated red blood cells and a fewer number of lymphocytes. White and red pulp are not well demarcated in most histologic sections of fish splenic tissue. Most of the spleen is composed of red pulp, which is formed by sinusoids containing the nucleated red blood cells, and the white pulp, which is composed of lymphocytes aggregating around vessels. दूसरा क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, एंड इट इज़ द मेन स्टोरेज साइट ऑफ आरबीसीज. तो ये आरबीसीज को स्टोर भी कर सकता है, एंड इट वेरीज इन साइज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेस.